Hello, sir. Hello. Sir, I would like to ask you how it feels to be here after so many years. It feels amazing, and it was wonderful interacting with you guys during the session, and I'm looking forward to more such sessions in future. Thank you. Sir, I would like to ask you, despite the rare health condition, what motivated you to do masters in biotechnology, Uh, uh, and how hemophilia affected your career? Yeah, see, actually, for that, let me give you an example during my school time. In 10th, I suffered from hip joint bleed and I was bedridden for 6 months. So one of my friend also asked the similar thing, that bio means you have to be in lab, standing and doing the practicals. But as I told you that previously during our conversation, that my aim was to become a scientist, find a cure for hemophilia. So that was a driving force for me. And when I came here, even we have good lab facility, and at the same time we have some tables to sit. Okay, so whenever I was tired, I could sit and relax, and at the same time, it was good that I was able to learn the new things, and those things never actually interfered into my career also, because I was able to understand what are the techniques, what are things to be done, so I knew where to take rest and where to stand. Yeah. So, what was the moment you realized that your life's purpose was not only to fight your own challenges but also help others through the Power in Me Foundation? See, the thing is that, as I told you, there was one place where I almost felt like if I would have died. Okay, and I survived. I did not die. So the search was to find out why am I alive. There has to be a reason for me to be alive after such a condition. So then through my as I conducted my studies and then job, I found out that there are people. I'm lucky enough to actually get my education done. Being a severe hemophilic, there are many who are not able to even get a schooling done. Okay, and I'm lucky that I can actually speak and talk about my pain, and I have technical education that helps me understand technology better and healthcare better. So it was my duty then that I become a voice for those who are not able to convey themselves or talk about their pain. Sir, can you please tell us more about Power in Me Foundation and what are its initiatives? Yeah, see, in brief, Power in Me Foundation, we work for the welfare of people with rare diseases. Okay, and that we have broken down into different segments. Healthcare, where you need first to provide them diagnosis and health facilities to have treatment, and then just having health does not define your complete life. You need to be educated because you need to have some livelihood. Okay, we see them as connected. So we work in healthcare, education, livelihood generation, and because many of the rare disease patients are also in the rural area. Okay, so rural development is also an important aspect, and environment is also very critical, as gene regulation is also governed by environment, and many mutations leading to mutated conditions are also because of the environmental toxicity. So we are into this aspect also, where we need to understand how environment is affecting lives of general people, leading to more genetic conditions or already pre-existing chronic diseases, how the environmental factors are affecting their livelihood. So these are some of the aspects that we are working on. So, what is the most valuable lesson from your life struggles that you would like to share with people who are suffering with their own problems, adversities, to inspire hope and strength? See, life is beautiful, no matter what. Okay, how many challenges may come in? Let them, because the most precious gift that God has given is life. Okay, so never give up. Have faith and keep working on yourself. You will see the daylight. Never give up.
So now it's a time for rapid fire questions. Okay. So the first one, Hmm. what was the funniest prank that you were part of during your college days? That is the most difficult one. See, actually, I was in my first year, and from the younger age also, I looked matured. Hmm. Okay, so my seniors with whom I shared my room, MSc seniors, they had their classmate who had a late admission because I looked mature. Now they said, Manoj, तेरे को वो दे आइडेंटिफाइड एंड टोल्ड कि ये है नया आया है हमारे उन्हीं का साथी था ठीक है सो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट का रैगिंग लिया था ठीक है रैगिंग इन सेंस मैं जाके उनको ये बोला था हे इधर आओ ठीक है अब बिकॉज आई लुक मेच्योर्ड इधर आओ विश कौन करेगा ठीक है ये जो एक चीज़ है सो दैट वाज द थिंग मेरा किया धरा नहीं था मैंने उसको ऐसे लिया कि आप जब बोल ही रहे हैं भैया लोग यही संभालेंगे इन्हीं के साथी हैं अगर वो गुस्सा हुआ तो यही संभालेंगे ठीक है तो आई टुक इट एज चलो एक एक्टिंग चैलेंज है देखता हूँ मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ ठीक है सो दैट वाज द एस्टोनिश तो वो और जिनके ऊपर वो प्रैंक किया था ही वॉज ऑल्सो सच अ वंडरफुल पर्सन कि वो भी बुरा नहीं माने एंड ही ऑल्सो लाफ्ड लेटर ऑन जब उनको बताया कि अरे ये तो जूनियर ही है ठीक है भैया लोगों ने बताया उनको एंड वी हैड ए गुड रिलेशनशिप बाद में सो दैट वाज वन प्रैंक अदरवाइज मैं प्रैंकस्टर नहीं हूँ मैं कोई प्रैंक ऐसे नहीं ये तो काफी लकी एक्सपीरियंस रहा हाँ आपका prank का। एग्जैक्टली Yes, sir. हाँ और सीनियर को प्रैंक किया भाई बीएससी वाले That ने was an MSc opportunity. हाँ सो आई टेस्टेड माय एक्टिंग स्किल्स Sir, how would you describe your first day at JECRC? फर्स्ट डे एट JCRC सी मैं पहले ही मनीष सर से फ़ोन पे बात करके आया हुआ था ठीक है तो मैं नर्वस तो नहीं था बट अगेन आई वॉज इन अ बिट ऑफ डाइसी फेज ठीक है कि अगर नहीं हुआ एडमिशन तो क्या क्या चीज़ नहीं है बिकॉज मेरे हेल्थ का वो कंसर्न तो था ही क्योंकि उससे पहले मैंने स्कूल लाइफ में भी मेरे छोटे भाई का उधर वो देखा था इंसिडेंट सो आई हैड टू टेल माई हेल्थ कंडीशन तो थोड़ा सा कंफ्यूज था बट आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज इट वॉज मेरा नया जर्नी शुरू होने वाला था वेयर मेरा जो गोल था टू बिकम ए साइंटिस्ट वो शुरू होने वाला था सो इट वॉज मिक्स ऑफ बोथ Sir, during exam times, were you a early bird or an night owl like us? मैं तो देखिए फिक्स डिसिप्लिन टाइम फॉलो करने वाला मुझसे था रात में जाग के पेपर नहीं दिया जा सकता मेरे से आई नीड माई ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स सो मेरे रूटीन था यानी 11 या 12 ओ क्लॉक ब्रेन बंद हो गया कोई बात नहीं बंद करो सो जाओ सुबह अपना 4 या 5 बजे उठो डिपेंडिंग ऑन कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं कि सेकेंड ईयर का हो रहा है ठीक है उस हिसाब से उठो और जाके एग्ज़ाम दो सेकेंड ईयर में तो हमारा यहीं पे सेंटर आ गया था तो आफ्टरनून में होता था तो मैं मॉर्निंग में उठ के नाश्ता करके 1 घंटा पढ़ाई करके ठीक है फिर उसके बाद नहा धो के फिर सो जाता था ठीक है फिर आके लंच करता था यहाँ पे मेस में जो भी बना है ठीक है पूरा फूड नहीं रहता था वो खाया मैंने फिर उसके बाद 1 घंटे का फिर नैप एग्ज़ाम वाले टाइम का बता रहा हूँ आपको जब पेपर होना है ठीक है फिर नैप फिर उठा फिर अपना कॉलेज चला जाता था वहाँ पे प्रैक्टिकल लैब में मैं वहाँ पे बैठ के लैब में पढ़ता था बाय द टाइम जब अब टाइम हो रहा है एग्ज़ाम शुरू होने का तो ऐसे करता था मैं Sir, what would you suggest कि हमें भी नाइट आउल होना चाहिए या फिर अर्ली बर्ड रहना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन नॉट एवरीवन कैन बी नाइट आउल और ये चीज़ फोकस ऑन दिस इफ़ योर ब्रेन इज एबल टू फंक्शन एट इट्स मैक्स रात भर जाग के कर सकते हो तो कर लो नहीं कर सकते हो तो भाई गुड नाइट स्लीप इज मस्ट बिकॉज दिस प्रोसेसर नीड्स टू वर्क फास्टर ड्यूरिंग योर एग्जाम पता चला लिखते समय पेन के लिखते समय नींद आ गई और जब आँख खुला आधा घंटा निकल गया ठीक है सो इट शुडंट हैपन दैट वे Sir, during your college days, what was the famous spot where you all would go and just hang out? हम लोग का यही कैंटीन अपना पहले तो यही था बाद में दूसरा बना था यहाँ पे आके अपना वो प्याज कचौड़ी खाते थे अच्छा। जोधपुरी कचौड़ी एंड पपीता शेक
ठीक है, दैट वाज द फेवरेट वन। इवन बर्थडे पे भी अगर पार्टी करना है तो वही ऑर्डर होता था, हाँ भाई ऑर्डर करो, और फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह और उसमें साथ में हो जाता था। सो कैंटीन। So nowadays it is replaced by cold coffee and pasta. तो आप लोग थोड़ा सा आर्टिफिशियल पे आ गए, हम थोड़ा सा मेन उस पे ही रहते थे यार। कचौड़ी का, प्याज कचौड़ी का, हाँ गरम गरम, उसका Traditional. ट्रेडिशनल चटनी के साथ उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, प्लस पपया शेक या बनाना शेक, तो अगेन दैट इज ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिशन ऑल्सो। ठीक है, तो वो भी चीज़ है। बीन बायोटेक वाला आदमी और मेरा हेल्थ का वो लेके, तो आई वुड वर्क आउट दी कैलोरीज ऑल्सो, कितना क्या विटामिन मिल रहा है, क्या ये चीज़ मिल रहा है। तो वही चीज़ है, आर्टिफिशियल चीज़ से दूर रहो। सर आप नमस्ते। अपनी नॉलेज को हर जगह यूज करिए। एग्जैक्टली, दिस इज़ हाउ वन शुड डू। एंड इवन दोपहर में आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं जहाँ से आया था मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता था, यहाँ पे थोड़ा तीखा डलता है, लाल मिर्च। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, दही, कर्ड। तो मेस में भी कर्ड तो चाहिए ही चाहिए साहब। ठीक है, अगर जुगाड़ हो सके तो एक एक्स्ट्रा कटोरी। Sir, what was the sport you were good at? मैं स्पोर्ट्स, अब देखो हेल्थ मेरा ये कांटेक्ट वाला कोई स्पोर्ट्स मैं नहीं खेल सकता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग कंडीशन। पर चेस खेलता था मैं। ठीक है, और राजेश शर्मा सर थे हमारे पीटीआई, तो उन्होंने मुझे, मैं हॉस्टलर था तो उन्होंने मुझे चेस इशू करके रखा था। ठीक है, एंड ही वॉज माई आफ्टरनून चेस पार्टनर। तो वो जब भी आते दोपहर में, तो अब ज़्यादातर मैचेस मैं जीतता था सर से। तो वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके आते थे, नया दाव या नया स्ट्रेटजी, और उनके थ्रू भी मैं कुछ चीज़ें सीख लेता था। अब सर आते और बोलते, मनोज खाना खा लिया? हाँ सर। लगाओ, आज तुमको डेफिनेटली हराऊंगा। ठीक है, तो सर के साथ 2-3 मैच होता था, फिर उसके बाद वो अपना काम पे, वो बाकी अपने एक्टिविटीज़ में लग जाते थे। और जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुआ था तो हमारे एक सीनियर थे आपके इंजीनियरिंग में ही, सुबह सरन आचार्य। ठीक है, तो हॉस्टल में ही थे, तो उनके साथ मैं चेस खेलता था। रात में 2 या 3 बजे तक हम खेलते थे, क्योंकि मुझे ये था कि उनको एक बार तो हराना है। ठीक है, मैं बोलता सर आपको जब तक एक बार नहीं हरा देता तब तक तो मैं नहीं जाऊंगा, ना तो सोने दूंगा आपको, ना खुद सोऊंगा। ठीक है, गोटियां चेंज कर देते, कभी वाइट लेके अगर मैं हार रहा हूँ तो मैं बोलता कि अब ब्लैक, अब मेरा, अब आप इधर आओ। ठीक है, तो ये चीज़ करते थे। Sir, what was the worst advice you got in the college? Like, our peers would give us bad advices too, along with good ones. अब कॉलेज में देखो, बैड एडवाइस वाला एज सच ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पीयर्स जो थे मेरे से डरते थे। ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वो चीज़ें आउटकम ऐसे था। बाद में आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग, और लोगों के साथ कैसे इंटरमिंगल होना है, लर्न टू एन्जॉय ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ें बाद में थोड़ी सी सीखी हैं, उन लोगों को भी उस चीज़ का बोलूँगा। कुछ लोगों ने थोड़ा सा फ़ायदा उठाने का भी कई बार कोशिश किया। एक चीज़ इंसिडेंट मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट ईयर का ही। मैं अपनी किताबों से बड़ा प्यार करता हूँ, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और उनके साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ये था कि एग्ज़ाम नेक्स्ट डे मॉर्निंग होना था, मैं तो सो जाता हूँ। ठीक है, लोग नाइट आउल वाले उन्होंने मांगा, मैंने बोला ठीक है मैंने तो पढ़ लिया है, अब तुम पढ़ लो, सवेरे पेपर होगा। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, मेरे किताब के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे को इतना तेज गुस्सा आया। ठीक है, उसके बाद मैंने तब तक ये था कि एमएससी पास आउट तक मैंने किसी को अपनी कोई किताब नहीं दी कभी भी, कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि किताब की बेइज्जती हो जाए। और उन्होंने तो टुकड़े कर दिए। इट वॉज लाइक कि भाई यहाँ पे मारा मेरे को। आई लव्ड माई बुक उस तरीके से। उसके बाद में मैंने हार्ड बाउंड करके करवा दिया है। पर अगेन दैट वॉज समथिंग दैट आई नेवर गिव बुक टू एनीवन। उसके बाद किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, पर किताब नहीं दूंगा। Sir, one more question that हाँ। many people have in their mind. हाँ। Like, nowadays, people think to just start new startups and all rather than doing jobs. So, as an engineering student, should I focus on like startup things, or like do I focus on skills to get a job? जॉब कोई तो दे रहा होगा ना। What problem are they solving? Who is going to be your employer? A problem solver, right? या मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाले हो,
कुछ भी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी कोई प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व कर रही है. So focus on solving a problem. You will automatically realize कि you want to be a job giver or job taker, and you will have right skill sets for it. अपने आप ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा. Focus on solving a problem. तो उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो भी आप सीखोगे. ठीक है. तो कोई आपको एम्प्लॉय भी करेगा तो भी वो लकी है. आप अपना शुरू करोगे तो भी आप अच्छा कर लोगे. Thank you very much, sir, हाँ. for your time. Thank you. So it was really inspirational, motivational, and knowing your journey gave me goosebumps. And also, now I'm thinking that people have a lot of problems in their lives, but when we learn about other people having other problems, it seems that our problems are nothing in front of them, Exactly. and that motivates us in living our life freely and enjoying ourselves, that at least we are not facing that trouble. And at least that shouldn't be temporary motivation. It should be permanent. And I hope that sticks with you guys. Sure.